اور کچھ بات کرتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بنائی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بالکل، معیشت کے حوالے سے بہت ہی اہم نوعیت کا یہ اجلاس ہے، جس میں آرمی چیف جنرل سید آصم منیر بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں 4 وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ایپیکس کمیٹی کونسل کے قیام کے بعد اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ رواں ماہ بیرون ممالک سے سرمایہ کاری کے لیے وفود کی آمد کا بھی امکان ہے۔ وفود کی آمد اور سہولت کاری کے لیے ایپیکس کمیٹی لائحہ عمل کی منظوری دے گی۔ اور معیشت کے حوالے سے ہی ایک اور خبر یہ کہ IMF معاہدے کے پاکستانی روپے پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں، اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی بات کریں تو 10 روپے سستا ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، کاروباری ہفتے کے پہلے روز تاریخی سطح عبور کرنے والی سٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز کاروبار کا منفی اختتام ہوا ہے، لیکن دوسرے روز بھی سونا مزید سستا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں بتائیں گے نجیب نائچ۔ روپے کو روندنے والے ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 55 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 285.99 سے کم ہو کر 275.44 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 روپے سستا ہو کر 280 روپے پر آ گیا۔ روپے نے اور پاکستانی سٹاک نے ایک نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور پاکستانی سٹاک آپ کو پتہ ہے کل 2500 کے قریب بڑھا تھا، اور آج پاکستانی روپیہ 10 روپے انٹر بینک میں بڑا یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور جو لوگ اس امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اور پاکستانی روپیہ 400-500 کو، ان کی امیدوں پہ پانی پھنس گئے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام ہوا۔ مارکیٹ 341 پوائنٹس کمی سے 43,557 پوائنٹ پر بند ہوئی۔ دوسری جانب دوسرے روز 100 روپے کی کمی ہوئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,887 روپے کمی سے 1,75,754 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں 17 ڈالر کے اضافے سے فی اون سونا 1,929 ڈالر پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ملکی معیشت کو کئی بار چیلنجز کا سامنا رہا ہے، مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز، اور بے شک ایسا یقینی طور پر ہے۔ بالکل، نجیب نائچ کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا، آج ہمارے لیے تاریخی دن ہے جسے یادگار بنانے کے لیے 75 روپے کا نوٹ جاری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ایک ریزنیبل میڈیم ٹرم رینج کے اندر لے کے آنا، یہ ہمارا چونکہ ہمارا کی گول ہی پرائس پہ دکھی ہے، جو کہ ہماری لیگل جو رسپانسبلٹی ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا سپروائزری فریم ورک مضبوط ہے، بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز ہیں جس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ شریعہ کورٹ کے حکم پر شریعہ فائنانسنگ بڑھانی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو ہائی ٹیک کرنے پر فوکس رہے گا، سائبر سیکیورٹی پر بھی ہماری توجہ ہے۔ کیمرامین محی الدین کے ساتھ نجیب نائچ، PNN کراچی۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف کو ایک اور دھچکا لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو جعلی ڈگری کیس میں عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ اب نون لیگ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان کو اسلام آباد طلب بھی کر لیا ہے۔
तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। वज़ीर आला जीबी के खिलाफ जाली डिग्री केस में नाअहली के लिए चीफ कोर्ट में केस की समाअत हुई। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज सुनाते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। पीपल्स पार्टी के रुकन जीबी असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जमा कराई गई डिग्री की लंदन यूनिवर्सिटी से तस्दीक नहीं हुई। फैसला आने के फौरी बाद वज़ीर आला के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला की जानिब से जीबी असम्बली को तहलील करने की मुमकिना मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान को डी नोटिफाई कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में आज अदालत ने नाअहल करार दिया था और अब इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान को डी नोटिफाई भी कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर सरगर्म है। जहांगीर खान तरीन से पार्टी ओहदेदार आमिर कियानी और ओन चौधरी की मुलाकात हुई और मुल्की सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा सियासी लाहमल पर बातचीत भी हुई है। और दोनों पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राबतों पर जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया है, जबकि पार्टी क़यादत का सियासी सरगर्मियों में तेज़ी लाने का फैसला सामने आया। इस मुलाकात में पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन और मेंबर साजी मुहिम पर भी आज बातचीत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर अब सरगर्म दिखाई देती है। जहांगीर तरीन से पार्टी ओहदेदार आमिर कियानी और ओन चौधरी ने मुलाकात की है। एक बार फिर से बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली की, जिसके बाद जीबी में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर खतरात के बादल अब मंडलाने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अपोजिशन जमातों के साथ ही पीटीआई के अंदर भी वज़ारत आला के उम्मीदवारों ने गठजोड़ शुरू कर दी है और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफीज़ुर रहमान को मुशावरत के लिए भी तलब कर लिया है। सियासी मैदान में बहुत ज़्यादा हलचल है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। पीटीआई चेयरमैन ने 2 सूबों में कायम अपनी 2 हुकूमतें तो खुद खत्म कर दी और बाकी 2 हुकूमतें भी कायम न रह सकी। पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास नाअहल हुए और अब गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को भी अदालत ने जारी डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद जीबी में भी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो गई। जीबी में अगली हुकूमत कौन सी जमात बनाएगी और इस सवाल के जवाब से पहले वहाँ एक नजर पार्टी पोजीशन पर डालना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 33 अरकान पर मुश्तमिल है। पीटीआई की 22 नशिस्तें हैं। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद अब ये तादाद 21 रह गई। जीबी में पीपल्स पार्टी के 4 और नून लीग की 3 नशिस्तें हैं। जेजुआई, इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक नशिस्त है, जबकि एक आज़ाद रुकन है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बावजूद पीटीआई अब भी जीबी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद पार्टी के अंदर कुर्सी की ख्वाहिशमंद भी कई हैं, जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। गुज़श्ता माह ही असम्बली के स्पीकर की तब्दीली हुई थी, जिसके बाद पार्टी में इख्तिलाफी आवाजें सामने आई थी। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग वज़ारत आला के दावेदार हो सकते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि इन्हें छोटी जमातों के साथ पीटीआई के भी एक बड़े धड़े की हिमायत हासिल हो। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग जीबी के सरबराह हफीज़ुर रहमान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में गेम ऑन है, मुमकिन है वहाँ भी आज़ाद कश्मीर के तर्ज पर पीटीआई का एक मुनहरिफ ग्रुप अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत कायम कर ले। अब आपको बताएं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। नैब सरबराह को मुकदमे से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाएगा। अगर वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो उसकी माफ़ी मनसूख हो जाएगी। माफ़ी मनसूख होने पर वादा माफ गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। नैब मुल्जिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद की 3 मुख्तलिफ अदालतों ने ज़ेर समात मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दे दिया है। हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में 10 जुलाई तक, जबकि एहतसाब अदालत की बात करें तो उन्होंने अहलिया बुशरा बीबी समेत 190 मिलियन पाउंड केस में 13 जुलाई तक जमानत में तौसीह दे दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में ट्रायल कोर्ट को 7 रोज में दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 3 केसेस की समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 5 मुकदमात में शामिल तफ्तीश जबकि 3 मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत करते हुए अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसीह दे दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी एनसीए के 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 13 जुलाई तक तौसीह कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की कोयटा में वकील के कत्ल से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई की कोयटा में वकील के कत्ल से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, अगर एटीए का सेक्शन 6 और 7 गलत तरीके से लगाया गया है तो किस कानून के तहत उनको हटाया जा सकता है? किसने फैसला करना है कि मुल्जिम पर गलत दफात के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, आपका हक है कि जाकर मुताल्लिका फोरम पर दरख्वास्त दें कि गलत दफात लगाई गई हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या आपने जेआईटी को चैलेंज किया है? वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील से मुकदमा की तफसीलात तलब कर ली। वकील चेयरमैन पीटीआई की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद। वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। इस्तदा की गई कि लार्जर बेंच बनाकर कल मुकदमे की समाअत का हुक्म दे दें। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, लार्जर बेंच बनाना हमारा अख्तियार नहीं, इस मामले में हम मफलूज हैं। वकील ने कहा, अगर आज अदालत ने हुक्म ना किया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। एक और अहम खबर है कि चौधरी परवेज इलाही के मुबैना कार-ए-खास जमान गनमैन से तफ्तीश में नई पेशरफ्त हुई है। जी हाँ, परवेज इलाही और गनमैन जमान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। परवेज इलाही और जमान के माबैन रकम के लेन देन से मुतालिक गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। सर बैंक के सामने खड़े हैं, बीवी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बैंक के क्या उस बैंक के सामने जाकर खड़े हो गए। अच्छा जी सर, मैं आ गया सर। जी सर, आ गया देखे सर। अच्छा चलो ठीक है। जी सर। तो मैं कितने बैठे हैं? मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो, जूना दिन दे दिए को पैसे। जी ठीक है सर। ठीक है सर। मेरे को कितने ने? पहले सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो 2 और ले। जी ठीक है सर। और अब कुछ बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह 2,04,000 से ज़ायद रुपए बढ़ा दी गई है। अदालत उस्मा के जजेस की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया गया है, ये हमें बताएंगे इस्लामाबाद से सिद्दीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी ऑर्डर 2022 मनसूख करके तनख्वाहों में इजाफे का नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अदालत उज़्मा के जजेस की बुनियादी तनख्वाहें 20% बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बुनियादी तनख्वाह में 2,04,865 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बाद इनकी माहाना आमदनी 12,29,189 हो गई है। इसी तरह अदालत उज़्मा के दीगर जजेस की बुनियादी तनख्वाह 1,93,527 रुपए इजाफे के बाद 11,61,163
63 रुपए हो गई है। वजारत कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले 10,24,324 रुपए तनख्वाह लेते थे। अदालत उज़्मा के दूसरे जजेस की माहाना आमदनी 9,67,636 रुपए थी। ताहम दीगर मराद के साथ चीफ जस्टिस की रनिंग तनख्वाह 15 लाख माहाना और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज साहिबान की मजमूई सैलरी 14 लाख से जायद थी। वफाकी सेक्रेटरी कानून राजा नईम के मुताबिक जजेस की तनख्वाहों में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी और फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। जी हाँ, इस्लामाबाद से ये जो रिपोर्ट है तफसीली हमने तैयार की है, इसे देखते हैं। नेपरा ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। नेपरा के मुताबिक फैसला डिस्कोस के माली साल 2022-23 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने डिस्कोस की दरखास्त पर 24 मई को अवामी समाअत की थी। इससे कबल जून तक सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे चार्ज किया जा रहा था। नेपरा का कहना है फैसले का इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन माह सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। मानसून सीजन के बायस गर्मी में कमी के बायस शॉर्टफॉल कम हो गया है, जबकि बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट रह गया। जी हाँ, बिजली की तरफ 26,144 मेगावाट हो गई और पैदावार 21,144 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सेनेट की कायमा कमेटी पावर के अरकान फट पड़े। शॉर्टफॉल के मामले पर नेपरा और पावर डिवीजन हुकाम के एदादो शुमार में तजाद सामने देखा गया। जी हाँ, चेयरमैन नेपरा ने लोड शेडिंग के तरीका कार की मुखालफत कर दी। कहा जो बिल नहीं देता बिजली उसी की बंद की जाए। मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग की गूंज सेनेट की कायमा कमेटी पावर में भी सुनाई दी। इजलास में अरकान बदतरीन लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहा शहरी इलाकों में 8 और दही इलाकों में 20 घंटे बिजली बंद रहती है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोड शेडिंग मेरे ख्याल में 18 घंटे से किसी जगह भी कम नहीं है। ऊपर तो हो सकता है लेकिन 18 घंटे से कम नहीं है। शहरी इलाकों में 8-8 घंटे जो है ना वो लोड शेडिंग है। इसमें यह है कि बाहर तो गुजारा थोड़ा हो सकता है, लेकिन घरों के अंदर शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अरकान ने कहा चोरी कुंडे डालने वालों का बिल 1 पंखा और 2 बल्ब चलाने वाला दे रहा है। तकसीम कार कंपनियों में माफिया चोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों की वजह से जिनके घरों पे, हुजरों पे, फार्म हाउसेज में 15-15 एसीज लगे हैं और वो बिल नहीं देते हैं, उसने डायरेक्ट कनेक्शन लिए हैं, तो हम जो गरीब लोग हैं उन बड़े लोगों की वजह से वो लोड शेडिंग का शिकार हैं। शॉर्टफॉल के मामले पर नेपरा और पावर डिवीजन हुकाम के एदादो शुमार में भी फर्क सामने आया। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट है, पैदावार 19,000 और तलब 27,000 है। जबकि चेयरमैन नेपरा ने बताया मुल्क में 6,000 का शॉर्टफॉल है, तलब 27,000 और पैदावार 21,000 है। चेयरमैन नेपरा ने लोड शेडिंग के तरीक़ा कार की मुखालफत कर दी। उनका कहना था जो बिल नहीं देता बिजली इसी की बंद की जाए। स्मार्ट मॉनिटरिंग बेहतरीन ऑप्शन है। चेयरमैन कमेटी ने कहा 3 साल में अवाम 3000 अरब से जायद कैपेसिटी पेमेंट दे चुके। बिजली है तो इन्हें दी जाए, चाहे महंगी ही क्यों ना हो। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आज़म से लोड शेडिंग का नोटिस लेने की अपील कर दी है। कहते हैं कराची में पहले लोड शेडिंग होती थी, अब 3-4 दिन तक बिजली बंद रहती है। मजीद उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी के बायस मसाइल का सामना है और जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने में मसरूफ है। उन्होंने मजीद भी गुफ्तगू की, वो आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर जिले में इस वक्त महसूस की जा रही है। सिंध के जिला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें।
इसी सारे मामले पर जमात इस्लामी का रद्दअमल भी सामने आ गया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नीमुर रहमान कहते हैं कि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। लाड़काना में 7 से 8 रोज से बिजली बंद है और थरपारकर में हैजे की वबा फूट पड़ी है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने कराची में कब्जा मेयर लाकर बिठा दिया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ने एक बिल्कुल कॉर्पोरेटोक्रेसी बल्कि हिपोक्रेसी का एक निजाम बनाया और वो ये है कि चंद लोगों को मराहत दे दो। मराहत याफ्ता तबका इन्होंने इस बिजली की तकसीम में भी पैदा कर दिया। इसलिए अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। इनकी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। बिजली अगर जनरेशन ज्यादा है तो वो बिजली पूरी की पूरी कराची को दीजिए। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। पंजाब के कई शहरों में मानसून की पहली बारिश, नदी नाले बिफरने से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। मूसलाधार बारिश से दर्जनों फीडर्स भी ट्रिप कर गए। जी हाँ, मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई और मजीद बारिशों के पेश नज़र PDM ने मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून के बादलों की घन गरज और बारिश की छमाछम। जेहलम, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ और पसरूर में जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से जेहलम शहर की अहम शाहराहें तालाब में तब्दील हो गयी। नदी नाले बिफरने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जफरवाल के मोहल्ला मुस्तफा आबाद में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश से कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली मुअत्तल हो गई। PDM ने मानसून की बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और बालाई वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। और पंजाब हुकूमत ने नाला लई की सफाई के ऑपरेशन के लिए 1 माह पहले फंड जारी किए थे, मगर मानसून शुरू होने के बावजूद अभी तक सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। जी हाँ, वासा की नाअहली और गफलत से करीबी आबादियों को बड़ा खतरा हो सकता है। मजीद जानेंगे रावलपिंडी से चौधरी सज्जाद की इस रिपोर्ट में। किलोमीटर पर मुश्तमिल नाला लई में सफाई ऑपरेशन गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। मानसून की बारिशें भी बरसना शुरू हो गई हैं। गलाजत के अंबार नाला लई पर भारी पड़ने लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चौड़ाई 150 फीट से कम होकर 80 फुट रह गई है। वासा रावलपिंडी के इक़दामात बारिशों के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए नाकाफी हैं। ये मशीनें काम कर रही हैं। ये हमारा सेकंड फेज शुरू हो चुका है। पहला फेज हमने 30 जून तक मुकम्मल कर लिया है। अभी इसके फौरन बाद आप देखें मशीनें, क्योंकि 2 हैवी बारिशें हुई हैं, उसके बाद जितनी सिल्ट आई है अब हम उसको क्लियर करा रहे हैं। इसके अलावा 13 झीली नाले हैं इसके, उन पर भी भरपूर सफाई चल रही है। नाला लई के अतराफ में गलाजत के अंबार को मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाने के इंतजामात भी नहीं किए जा सके। वासा की गैर संजीदगी ने तजावुजात माफिया को भी खुली छुट्टी दे रखी है। अभी तो ये कार्य हर साल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए। इस तरह सब कूड़ा करकट इधर फेंक देते हैं ना, तो ये फिर गंद जो है दोबारा उधर चला जाता है, फिर यही गंदगी सब घरों में जाती है। सफाई ऑपरेशन पर 3 करोड़ से जायद रकम खर्च तो कर दी गई, लेकिन करीबी आबादियों के लिए खतरात अपनी जगह कायम हैं। मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा नाला लई और शहर के बड़े नालों और सीवरेज लाइनों की बर वक्त सफाई जरूरी है, ताकि किसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। मानसून बारिशों के हवाले से इस वक्त रावलपिंडी की इंतजामिया की सारी तवज्जो नाला लई पर मरकूज है, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी के शहरी इस बात का शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि रावलपिंडी नाला लई के ऊपर अगर तजावजात ना खत्म की गई तो मजीद नुकसान बढ़ सकता है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ चौधरी सज्जाद, PNN रावलपिंडी। और दूसरी जानिब लाहौर में तेज आंधी ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगे सोलर सिस्टम की मजबूती का पोल खोल दिया। सबके पोल खुल रहे हैं। जी हाँ, तेज आंधी से सोलर पैनल की प्लेटें उखड़कर गिर गई हैं। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे चौधरी अशरफ। नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगे सोलर सिस्टम की तनसीब में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। आंधी के बायस सोलर सिस्टम मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही तबाह हो गया। 15 करोड़ की लागत से नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा था। आंधी के बायस सोलर प्लेटें उखड़ गईं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सोलर प्लेट उखड़ने के बायस पंजाब हुकूमत का महकमा खेल में तवानाई बचत मंसूबा भी मजीद ताखीर का शिकार हो गया। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी अशरफ, PNN लाहौर।
کراچی میں ضلع ملیر کے مختلف مقامات سے لیے گئے پانی کے سیمپلز میں ڈائریا اور ہیضے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر کے علاقے شیدی گوٹ میں آلودہ پانی سے ڈائریا پھیلنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ نے پانی میں وائرس اور اس کے علاوہ ڈائریا کے جراثیم کی تصدیق بھی کی ہے۔ ملیر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو صاف پانی سے متعلق آگاہی دینے کے لیے خصوصی کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور شیدی گوٹ میں 28 جون سے ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور کے سروسز اسپتال میں زیر علاج نیگلیریا کا 30 سالہ مریض جان کی بازی ہار گیا۔ مصطفیٰ شفیق کو 4 روز قبل سر میں شدید درد کے باعث سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق پرائیویٹ لیبارٹری میں نیگلیریا کا ٹیسٹ مثبت آنے پر علاج معالجہ جاری تھا۔ مصطفیٰ شفیق باڈی بلڈر تھا اور 4 روز قبل سوئمنگ کے دوران سر میں درد ہونے سے سروسز اسپتال لایا گیا تھا۔ نیگلیریا کا جرثومہ مصطفیٰ شفیق کے اندر سوئمنگ کے دوران داخل ہوا۔ طبی ماہرین نے کہا نیگلیریا صاف پانی میں افزائش پاتا ہے۔ پانی میں نیگلیریا کا ہونا تشویشناک ہے۔ ادھر کراچی کے چڑیا گھر اور سفاری پارک پر قبضے کی جنگ میں تیزی آ گئی ہے۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک کے تمام ٹھیکے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ایسا یہ پہلی کمپنی نے ٹھیکے منسوخ کیے جانے پر میئر کراچی کو خط لکھ دیا تھا۔ مزید کیا کچھ ہوا اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی غذا فراہم کرنے والی کمپنی کے علاوہ تمام ٹھیکے منسوخ۔ سینئر ڈائریکٹر چڑیا گھر اور سفاری پارک اقبال نواز نے ٹھیکے منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ چڑیا گھر کے منسوخ کیے گئے ٹھیکوں کی دوبارہ نیلامی ہوگی۔ سفاری پارک کے منسوخ کیے جانے والے ٹھیکوں کی نیلامی 10، 11 اور 12 جولائی کو ہوگی۔ اس سے قبل ٹھیکے حاصل کرنے والی کمپنی شیخ انٹرپرائزز نے میئر کراچی کو ٹھیکوں کی منسوخی کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ شیخ انٹرپرائزز کا خط میں کہنا ہے کہ ٹھیکے کی ایڈوانس 10% رقم کے علاوہ 80,000 روپے بھی ادا کیے ہیں۔ ٹھیکوں کا معاملہ پہلے ہی عدالت میں ہے اور ہمارے پاس اسٹے آرڈر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی کمپنی نے 3.25 سال سے زیر التوا معاہدے پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ سیف سٹی کیمرے ٹھیک کرنے کے لیے سامان امپورٹ کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے شراز نثار۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے چینی کمپنی کو پرانے معاہدے کے تحت تمام کیمرے آپریشنل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ چینی کمپنی نے کیمرے، پاور بیٹریاں، LCD سمیت دیگر تکنیکی اشیاء امپورٹ کر لیں۔ چینی کمپنی کو 14 اگست تک 2000 مزید کیمرے فعال کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ 50% سے زیادہ کیمرے آپریشنل ہیں اور ابھی ان کو جو آئی جی صاحب نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس میں جو اکوپمنٹ ان کا ابھی پہنچ رہا ہے، فیزز میں اکوپمنٹ آتا رہے گا، یہ ابھی پہلی لاٹ ان کی آ رہی ہے، تو اس میں انہوں نے ٹارگٹ لیا ہے کہ ہم 2000 کیمرے اس میں مزید ایڈ کریں گے جو فعال کر دیں گے۔ فیشل رینکنگنائزیشن سسٹم سمیت تمام سافٹ ویئرز کو بھی مکمل فعال کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق چینی کمپنی پروجیکٹ کو 100% مکمل فعال بنانے کی ذمہ دار ہے۔ سافٹ ویئر ٹیم جو میں نے بتایا کہ چائنا سے آئی ہیں، انہوں نے فعال کر دیا ہے، اس کی ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل چل رہی ہے، چونکہ کافی دیر کے بعد وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ اور پرابلم نہ آ جائے، کچھ ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ایشوز بھی تھے، وہ ہارڈ ویئر آنے سے وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے، تو اب وہ ریوائیو ہو گئے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، اسی پیریڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سارے فعال ہو جائیں گے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے مکمل فعال ہونے سے جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی فورس اور پروجیکٹ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس ملک کے شہری اس کا ساتھ دیں۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ شراز نثار، PNN لاہور۔